Students, now we'll see numerical number 3.9. Here they have given a network like this and they are asking you to calculate current in each branch. They will be giving you only this much circuit. You have to just divide the currents also. Okay, so just see, starting from here, if this is the cell, we know that the current starts flowing from positive terminal of the battery and comes back to the negative terminal. So from the positive terminal of the battery, suppose if I say current I starts flowing. Now I'll just name this junction. Suppose if this is junction A. Then at junction A, you can see the current I is getting divided into two parts. So suppose this current I call it as I1, and suppose this current I am calling it as I2. Now again this is a junction. Suppose this is point B. I can see that this I1 current again gets divided into two parts. So now I1 and I2 names I have already given. So I will give this current name I3. Okay. So same current I3 will flow up till here. Now just see in this branch, suppose if I call this as C point. Then in the branch BC, how much current will flow? See, initially I1 was coming in this direction. But out of I1, I3 is coming in this direction. So what I can say that in this branch, the current is I1 minus I3. Just see here, I1 was entering B1, but B. I1 was entering point B, but from point B, I3 current is leaving. So what I can say is this current is I1 minus I3. Okay, so through branch BC, current I1 minus I3 is flowing. Now we'll see this point is suppose D. So we'll see through branch DC. Here I2 current is entering point D and I3 current is also entering point D. So both these currents meet at point D and they start flowing through this branch. So suppose this current is I2 plus I3. Now both these currents I1 minus I3 and I2 plus I3 are meeting at point C. So like I did for here, this is like I did for here, I have to add these two currents for this point. So it will give me I1 minus I3 plus I2 plus I3. So this minus I3 and plus I3 will get cancelled. And so here the current flowing will be I1 plus I2. But you see from here, what is I1 plus I2? It is I. So what I can say that here the current flowing is I. So now remember this. I is equals to I1 plus I2. Okay. You can say that this is the junction rule applied at point A, or you can say junction rule applied at junction C. So I can write here like this. At junction A. And same is the condition at junction C also. Now I have distributed the currents in all the branches. I want to calculate the current in each branch. Means I want to know the value of current I1, I2 and this I3. If I obtain it, I will obtain current in the rest branches also. So now I'll start with Kirchhoff's second rule, that is the loop rule. So firstly, I'll consider this loop A, B, D, A. Okay, so I'll apply the loop rule. So for loop A, B, D, A. Now according to the sign convention, I have to write the potential differences across the resistors. So when I move from A to B, I am moving in this direction. So when I move from A to B, the current is coming along my direction, like this way only. So I have to write the potential difference across the resistor as negative according to the sign convention. So it will be 10 minus 10 I1. Okay. 10 was the resistance. I1 was the current. So according to Ohm's law, I into R
that is the potential difference across the resistor, and according to the sign convention the current is coming along with me, therefore I'll take the potential difference as negative. Now I have to go from B to D. So I am moving in this direction, current is also coming along with me, so again here also potential difference will be negative 5I3. Now I have to move from D to A. What is happening? See, I am moving in this direction, but current is not coming along with me. मुझे सामने मिल रहा है current. And when the directions of current and the direction of calculation, that is my direction, are opposite, then the potential difference is entered with a positive sign. So 5I2 equal to 0. Okay, this is my equation 1. Now I will apply the loop rule in another loop B, C, D, and B. So now second loop. So here also, while moving from B to C, current is coming along with me. So I have to write the potential difference as negative. So here resistance is 5 and current is I1 minus I3. So resistance multiplied by current. So minus 5 I1 minus I3. Now I have to go from C to D. So when I move from C to D, direction of calculation and current are opposite. So potential difference will be positive. So resistance multiplied by current. So 10 multiplied by I2 plus I3. Now I have to go from D to B. So again, the direction of calculation and the direction of current are opposite. So again, the potential difference will be positive. Resistance multiplied by current. So that will give me 5I3 is equals to 0. So this is my equation 2. Now I will use the third loop. And the third loop is this one, the outer loop. So how will you decide the loops? कैसे आप सोचोगे कि मुझे ये लूप लेनी है, फिर ये वाली और फिर ये वाली? एक और लूप ये भी है, आप देखो A, B, C, D, A, ये लूप भी है, ठीक है ना? सो आपको इस तरीके से लूप को सिलेक्ट करना है कि जो भी अननोन आपको चाहिए, मेरे अननोन कितने हैं यहां पर? I1, I2 एंड I3. सो आप जो भी लूप कंसिडर करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन मिलेगा. सो आपको ऐसे लूप सिलेक्ट करने हैं कि आपके इक्वेशन के अंदर आपके सारे अननोन्स जो हैं वो आ जाए, ठीक है? सो मैं जितने भी लूप्स लूंगी मेरे पास I1, I2 और I3 से रिलेटेड इक्वेशंस बनेंगे. फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके I1, I2 और I3 की मैं वैल्यूज ऑब्टेन कर लूंगी, जिससे कि मुझे इन ब्रांचेस में कितना करंट है वो पता चल जाएगा. So now my last loop is this one, outer one. So that is loop A, D, C, E, A. See, A, D, C, this E, and then back to A. So again, we'll apply the loop rule in this loop. So what I'll get? When I move from A to D, direction of calculation and direction of current is same. So potential difference will be negative. So minus 5 into I2. So ये हो गया. Now I have to move from D to C. So this is the direction of calculation and same is the direction of current, you can see here. So again potential difference कैसा आएगा? Negative. So that is resistance multiplied by current. Now I have to move from C to E. So this is my direction of calculation. और मेरे डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन में मुझे पहले कौन मिला? बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिला है. तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन मुझे बैटरी का ईएमएफ कैसे लिखना है? पॉजिटिव. अगर पहले नेगेटिव टर्मिनल मिलता है मुझे तो पोटेंशियल को मैं कैसा लिखूंगी? पॉजिटिव. ठीक है. नाउ आई हैव टू मूव फ्रॉम ई टू ए. सो व्हाइल मूविंग फ्रॉम ई टू ए, बीच में कौन आता है? एक रेजिस्टर आता है, राइट? एंड सी द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टर. इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन. सो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव. सो दैट इज रेजिस्टेंस इज 10. करंट कितना है? I. सो आई विल राइट -10 I इज इक्वल्स टू 0.
अब क्या करेंगे, दिस इज माई इक्वेशन 3. ओके, अब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 देखो. यहां पर इस ब्रैकेट्स को हम ओपन कर लेंगे. सो पहले from equation 2, I'll just solve equation 2. So I'll multiply this 5 inside. So what I'll get is minus 5i1 minus 5i3 plus 10i2 plus 10i3 plus 5i3. ये मिला. अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा. तो जस्ट सी हियर, this is 5i3, 10i3 and this is again 5i3. So ये कितना हो गया, 15i3. 15i3 minus 5i3. यहां पर मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है. इफ यू मल्टीप्लाई दिस 5 इनसाइड तो क्या मिलेगा, माइनस 5i1 माइनस माइनस विल गिव यू प्लस i3. ठीक है ना, ये प्लस i3 हो जाएगा. सो अब आप देखो ये सारे i3 हैं और सब पॉजिटिव है. सो 5 प्लस 10 15 प्लस 5 20. सो क्या मिलेगा, 20i3. सो मेरे पास क्या बच जाता है, माइनस 5i1 प्लस 10i2 प्लस 20i3. ठीक है, तो ये मेरा हो गया इक्वेशन 2a. बेटर होगा कि आप इसको यहीं पर ही सॉल्व कर दो. आई जस्ट फॉरगॉट टू सॉल्व इट, सो इसलिए मैंने यहां अलग से किया है. आप लोग क्या करना, जैसे ही आपको ये इक्वेशन मिलता है पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लो और फिर ये जो फाइनल इक्वेशन आता है आप उसको इक्वेशन 2 बोलो. ठीक है, मैं भूल गई थी इसलिए मैं अभी यहां पर कर रही हूं. सेम वे फॉर इक्वेशन 3. So from equation 3, again what I'll do, I'll open all the brackets and instead of this I, what I will substitute, I1 plus I2. ये क्या है, it is I1 plus I2. आप यहां देखो क्या था I, it was I1 plus I2. तो उसको भी मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगी. ठीक है, और फिर ब्रैकेट ओपन करके फाइनल जो आंसर आता है वो मैं लिख रही हूं यहां पर. सो दिस इज माइनस 5i2. Then this will give me minus 10i2. Minus 10i2 minus 10i3. This is plus 10 minus 10i1 minus 10i2. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. तो आप देखो यहां पर this is I2, I2 and I2 and all are minus. So आपको क्या करना है, सबको ऐड करना है, बट साइन कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी. ठीक है, सो दिस इज माइनस 10i1. अब I2 वाली टर्म देखते हैं तो दिस इज 5, 10 and 10. सो दिस इज माइनस 25i2. अब क्या बचा, I3. तो इट इज ओनली माइनस 10i3. ये प्लस 10 अभी बचा था. दिस वॉज द EMF ऑफ द बैटरी. सो दिस इज प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज माई इक्वेशन 3a. Now see, I have obtained my 3 main equations. That is this one, equation 1, equation 2a and equation 3a. ठीक है, now what I'll do, I will solve all these 3 equations 1, 2 and 3 in order to obtain the values of I1, I2 and I3. So अब क्या करते हैं, ये तीनों इक्वेशन जो हैं मैं पहले एक बार लिख लेती हूं पीछे. So just see here, equation 1 was minus 10 I1 minus 5 I3 plus 5 I2. This was my equation 1. Now equation 2a, minus 5 I1 plus 10 I2 plus 20 I3. This is my equation 2a. Now equation 3a.
और इसका जो +10 है हम इक्वल टू के दूसरे तरफ लेकर जा रहे हैं, सो इट विल गिव मी -10. दिस इज माई इक्वेशन 3a. नाउ आई नीड टू सॉल्व दीज इक्वेशंस. ओके, सो जस्ट सी आपको क्या करना है. सपोज इफ दिस इज इक्वेशन 2, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करूं, इफ आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, देन दिस विल गिव मी -10. एंड इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस विल गिव मी +10 ओवर हियर. तो दिस इज -10 एंड दिस इज +10 I1. तो I1 वाली जो टर्म है वो कैंसल हो जाएगी. और इस तरीके से इन दोनों को सॉल्व करके मुझे जो भी इक्वेशन मिलेगा उसमें फिर सिर्फ 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे, 2 अननोन हो जाएंगे, दैट इज I2 एंड I3. तो इस तरीके से आपको सोल्यूशन करना है. ठीक है, सो अब देखो व्हाट आई एम डूइंग इज मल्टीप्लाई इक्वेशन 2a, दिस इक्वेशन, बाय 2. तो क्या मिल जाएगा, मुझे ऐसा मिलेगा -10, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, सो दिस विल गिव मी -10 I1 +20 I2 +40 I3 is equals to 0. So I have to multiply this equation by 2 and then I have to subtract this equation from equation 1. So now subtract this equation from equation 1. तो अब लिखते हैं. So पहले equation 1 लिखना है क्योंकि उसमें से हमें इस equation को subtract करना है. So first I'll write equation 1, that is -10 I1 +5 I2 -5 I3. मैंने ये टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज कर दिया है. ओके, सो दिस वाज माय इक्वेशन 1. फ्रॉम दिस इक्वेशन आई नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन. सो पहले ये वाला इक्वेशन लिख देते हैं. इट इज -10 I1 +20 I2 +40 I3. ओके, बोथ वर इक्वल टू 0. अब मुझे क्या करना था, इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था. सो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस, दिस माइनस एंड दिस प्लस विल बिकम माइनस, दिस माइनस एंड दिस प्लस विल बिकम माइनस. और अब इसका मैं सोल्यूशन लाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा. सी, दीज टू विल गेट कैंसल्ड. दिस इज नाउ -10 I1 +10 I1. सो दिस विल गेट कैंसल्ड. यहां पर क्या हो जाएगा, 5 I2 -20 I2. सो दैट विल गिव मी -15 I2. This is -5 I3 -40 I3. So this will give me -45 I3 is equals to 0. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा. ये पूरा इक्वेशन जो है इसको अगर मैं 15 से डिवाइड कर दूं इस इक्वेशन को तो क्या मिलेगा. दिस डिवाइडेड बाई 15 विल गिव मी -I2. This divided by 15 will give me what? 15 multiplied by 3 is equals to 45. So this will give me 3I3 is equals to 0. Okay, so this is my equation 4. Now again what I'll do, ये जो मेरा इक्वेशन 2a था जिसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगी, ये इक्वेशन 3 जो है ना उसको इस इक्वेशन में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी. जस्ट सी हियर दिस इक्वेशन, हियर ऑल्सो आई एम हैविंग 10 I1. तो जब मैंने इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो मुझे क्या मिला था, 10 I1 मिला था. सो इन दोनों को भी जब मैं सॉल्व करूंगी तो ये I1 वाली टर्म जो है वो एलिमिनेट हो सकती है. तो मैं अब इन दोनों को सॉल्व करूंगी. सो आई विल राइट दैट. So again multiply equation 2a by 2. So आपको इक्वेशन तो मिल जाएगा. Now subtract
इक्वेशन 3a, हाँ, नॉट इक्वेशन 3, इक्वेशन 3a फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो अब उसके लिए लिखते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपको इक्वेशन 3a को, ये 2a को जो 2 में से मल्टीप्लाई किया है, मतलब कि इस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये वाला इक्वेशन पहले लिखना है आपको। सो आई राइट दैट इक्वेशन, -10i1 प्लस 20i2 प्लस 40i3 इज इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन 3a को मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। सो दिस इज माई इक्वेशन 3a, सो आई विल कॉपी डाउन दिस इक्वेशन। सो दैट इज -10i1 minus 25i2 minus 10i3 is equals to -10। अब मुझे क्या करना है, ये इक्वेशन 3 है मेरा, उसको इस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है। सो माइनस माइनस विल गिव मी प्लस, दिस माइनस माइनस अगेन विल गिव मी प्लस, हियर ऑल्सो प्लस एंड हियर ऑल्सो प्लस। Now I'll solve it. So this is -10i1, this is +10i1, so this will get cancelled. Plus 20i2 plus 25i2 will give me 45i2 plus 40i3 plus 10i3 will give me 50i3 is equals to, क्या बचा है, +10. So this is my equation 5. Now see, I have obtained equation 4 and 5. If you observe these two equations carefully, तो आप यहां पर देखो, ये है I2, यहां पर है 45I2. Now suppose if I multiply equation 4 by 45 and add that equation into this equation, तो क्या हो जाएगा? This will give me -45I2 plus 45I2. तो I2 वाले टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और मेरे इक्वेशन में क्या बचेगा, I3 वाले टर्म्स बचेंगे। तो जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो आई विल बी एबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ I3। तो जब मुझे I3 की वैल्यू मिल जाएगी तो ऊपर वाले दूसरे इक्वेशंस थे, जब मैं उसमें I3 की वैल्यू डालूंगी तो मुझे I1 और I2 की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन 4 by 45 and add that equation into equation number 5. So I'll write here, multiply equation number 4, this equation, by 45. So क्या हो जाएगा, कैसा मिलेगा मुझे, this will give me -45i2 minus 3 into 45 is 135i3 is equals to 0. Now what I have to do is I have to add this equation into equation number 5 and add in equation 5. So now I'll add it. So -45i2 minus 135i3 is equals to 0. ये तो हमें ऐड ही करना है, तो आप किसी को भी ऊपर लिखो इक्वेशन को और किसी को भी नीचे लिखो, इट इज ओके। प्लस 45i2 प्लस 50i3 is equals to 10. Now add them. So what I'll get is, this will get cancelled. So from here what I'll obtain, minus 135 में से 50 माइनस करना है, ओके, और साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 135 बड़ा है, सो उसका साइन यहां पर फॉलो होगा। सो दिस इज -85i3 is equals to 10. If I solve this, I'll obtain I3 is equals to -10/85. 10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 multiply by 5. 85 को कैसे लिख सकती हूँ, 17 multiply by 5. सो मुझे यहां से क्या मिल गया, I3 is equals to, ये माइनस साइन तो मैं भूल गई, ओके, सो यहां क्या मिल गया, -2 डिवाइडेड बाय 17. सो एक वैल्यू मुझे मिल गई I3 की। अब मुझे चाहिए वैल्यू I2 और I1 की। सो अगेन नाउ सी दिस इक्वेशन 4। इस इक्वेशन में सिर्फ
दो ही अननोन है I2 एंड I3, जिसमें से अब I3 की वैल्यू मेरे पास है. सो अगर ये I3 की वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो इजीली आई विल बी एबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ I2. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, व्हाट वाज माय इक्वेशन नंबर 4? दिस वन. इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, I2, ये I2 जो है उसको हम इक्वल टू के दूसरे तरफ लेकर जा रहे हैं, सो इट विल बिकम पॉजिटिव. ओके, सो प्लस I2 इज इक्वल्स टू -3I3. अब क्या करेंगे, ये जो I3 की वैल्यू है विल सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर. सो व्हाट आई गेट इज -3 इंटू -2/17. सो ये कितना दे देगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 6. सो 6 डिवाइडेड बाई 17 और मल्टीप्लीकेशन करना है तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस. सो आई एम ऑब्टेनिंग I2 इज इक्वल्स टू 6/17. नाउ आई नीड टू ऑब्टेन I1. सो अब उसके लिए फिर से हम आगे वाले इक्वेशंस देखेंगे. सो आप ये इक्वेशंस देखो यहां पर 1, 2 एंड 3 इक्वेशंस. सपोज इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I2 एंड I3 इन दिस इक्वेशन तो मुझे I1 की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, आप किसी में भी सब्स्टिट्यूट करो, इन तीनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो. यहां नंबर्स छोटे हैं 10, 5 एंड 5. दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड दिस. कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा इसलिए. सो आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I2 एंड I3 इन इक्वेशन 1. सो व्हाट आई विल राइट इज फ्रॉम इक्वेशन 1, which was my equation 1, minus 10I1 minus 5I3 plus 5I2 is equals to 0. I'll substitute I1 and I2. Sorry, I2 and I3. तो क्या मिलेगा मुझे, -10I1. इनको इक्वल टू के इस तरफ लेकर जा रही हूं मैं. ठीक है, सो ये कैसा हो जाएगा, +5I3 -5I2. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो दिस इज -10I1 इज इक्वल्स टू 5. I3 की वैल्यू कितनी है, I3 की वैल्यू है -2/17. -2/17. यहां से मैं 5 को कॉमन ले रही हूं बाहर. ठीक है, सो इट विल गिव मी I3 माइनस I2. तो I2 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू है 6/17. जब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, -2 -6 दैट विल गिव मी -8. -8 मल्टीप्लाई बाई 5 विल गिव मी -40. सो दिस इज एक्चुअली -40 डिवाइडेड बाई 17. ये क्या था, -10I1. अब I1 को सब्जेक्ट बना लो तो I1 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है. ठीक है, और ये 10 यहां पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो 40 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 1/10. सो ये क्या मिल गया मुझे, I1 इज इक्वल्स टू 4/17. ये 0 0 कैंसिल. ओके, सो 4/17. तो मुझे क्या मिल गए, तीन करंट्स मुझे मिल गए हैं, I1, I2 एंड I3. अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि जितने भी ब्रांचेस नेटवर्क में दिए हैं उसमें करंट कितना है वो देखना है. तो हम पहले सर्किट देख लेते हैं. ये रही हमारी सर्किट. तो अब सारी ब्रांचेस में जो करंट्स हैं हम पहले वो लिख लेते हैं. So first, suppose if we talk about this branch, so that is current in branch AB. क्या नाम है उसका, I1. I1 की वैल्यू हमने कितनी ऑब्टेन की थी, 4/17. So I'll write here 4/17 and unit is ampere. अब देखते हैं ब्रांच BC. So current in branch BC क्या वैल्यू है, I1 माइनस I3. सो I1 माइनस I3. I1 की वैल्यू कितनी है, 4/17. I3 की वैल्यू कितनी है, -2/17.
ओके इसको जब सॉल्व करेंगे 4 माइनस 2 दैट इज +2. सो दिस विल गिव मी 6/17 एम्पियर. अब देखते हैं ब्रांच एडी. सो करंट इन ब्रांच एडी इज इक्वल्स टू कितना है, इट इज I2. I2 की वैल्यू हमको कितनी मिली है 6/17. सो आई राइट हियर 6/17 एम्पियर. अब देखते हैं ब्रांच डीसी. तो करंट इन ब्रांच डीसी इज I2 प्लस I3. I2 की हमारी वैल्यू थी 6/17 और I3 की वैल्यू थी -2/17. ओके सो दिस इज प्लस, दिस इज -2/17. सो 6 - 2 कितना हो जाता है 4 डिवाइडेड बाई 17 एम्पियर. अब कौन सी ब्रांच बच गई है, AB, BC, AD और DC. ओके BD ब्रांच इज रिमेनिंग नाउ. सो BD ब्रांच में कितना करंट है I3. सो ब्रांच BD करंट इज I3. I3 की वैल्यू कितनी थी -2/17. सो -2/17 एम्पियर. ओके सो ये हमें सारी ब्रांचेस में कितना करंट है वो मिल गया. अब टोटल करंट कितना है सर्किट में, देखो दिस वाज द टोटल करंट I एंटरिंग एंड कमिंग आउट. बट व्हाट वाज I वाज I1 प्लस I2. सो अब टोटल करंट कैलकुलेट कर लेते हैं. टोटल करंट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2. सब्स्टिट्यूट बोथ द वैल्यूज. I1 की वैल्यू है 4/17 और I2 की वैल्यू है 6/17. So this will give me 6/17 and the answer is 10/17 ampere. So this is the total current. See, ये numericals काफी lengthy होते हैं but they are easy. If you concentrate, they are easy and they ask such numericals in exam. अगर आप पिछली बार की ही बोर्ड की एग्जाम देख लो तो उसमें ऐसा न्यूमेरिकल उन्होंने पूछा था. सो जब भी आपको आंसर मिल जाए ऑलवेज जस्ट मेक अ बॉक्स ओवर देयर. सो ये है हमारा AB, फिर हमारा BC, दिस इज AD, DC, ये हो गया BD and this is our total current.